Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 12th of May 2021, Wednesday. Inspiration of the day is when writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Sebi for relaxing post-IPO lock-in for promoters. So, by changing the rules associated with issue of capital and disclosure requirement, as well as by rationalizing the definition of promoters group, the Security and Exchange Board of India is going to ease out the lock-in period for promoters. But this particular modification is in the proposal stage. अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. सेबी का एक प्रपोजल है कि जो इशू ऑफ कैपिटल और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम ICDR कहते हैं, उनमें जो प्रमोटर्स की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और जो मिनिमम लॉक इन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है प्रमोटर्स के लिए पोस्ट IPO, उसको भी थोड़ा सा ईज आउट किया जाए. And if this particular proposal is accepted and implemented, it will simply ease the regulatory burden for the listed firms and could encourage more companies to get listed. अब क्वेश्चन ये उठता है कि what is the current status? As per the market regulator, the current lock-in period is 3 years. अभी प्रमोटर्स को अपने 20% शेयर होल्डिंग्स को अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स तक लॉक इन पीरियड में रखना होता है आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. एंड व्हाट सेबी इज प्रपोजिंग? सेबी इज प्रपोजिंग टू डिक्रीज और ब्रॉट इट डाउन टू 1 ईयर. 1 साल, 3 साल से 1 साल तक रिड्यूस कर देना. जो अभी 3 साल की रिक्वायरमेंट है लॉक इन पीरियड, 3 साल का है, उसको 1 साल में कन्वर्ट कर देना. And further, the lock-in requirement on promoter shareholding in excess of 20% and pre-IPO non-promoter shareholding can be brought down to 6 months. और currently कितनी है? It is 1 year. So pre-IPO non-promoter shareholdings का जो lock-in period है वो अभी 1 साल का है and that is to reduce up to 6 months. As per the SEBI, the lock-in requirement was necessary to ensure the continuous skin in the game, particularly in the case of companies that are actually raising public capital for the project financing or setting up the greenfield project. तो जो लॉक-इन पीरियड था उस समय it was very important. Here one phrase is being used by business standard, that is skin in the game. And if we talk about the meaning of this particular phrase, so skin in the game is a phrase that is actually made popular by renowned investor Warren Buffett. And he actually referred to a situation in which high-ranking insider use their own money to buy stock in the company that they are running. Although apart from Warren Buffett, this particular skin in the game phrase is also being used in number of business finance and gambling related issues. अभी यहाँ के लिए contextual meaning इसकी क्या है? Basically here the meaning of skin in the game refers to owners, executives, principals, promoters having a significant stake in the spheres of the company they actually manage. तो सेबी का ये कहना है कि पहले जो लॉक इन पीरियड था वो रिक्वायर था जिससे कि जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, जो कंपनी के प्रिंसिपल्स हैं, एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ओनर्स हैं, उनका स्टेक कंपनी में बना रहे. उनका स्टेक अगर कंपनी में बना रहेगा तो उससे क्या होगा? अगर कंपनी कोई पब्लिक फंड को रेज करने के लिए जाती है तो पब्लिक के भी माइंड में एक कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स के माइंड में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि इनके प्रमोटर्स के पास खुद इतने % शेयर हैं, तो अगर कंपनी फ्लॉप होती है या कंपनी लॉस में जाती है तो प्रमोटर्स को, जो ओनर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको भी नुकसान होगा. So definitely promoters, top executive will try each and every option to keep company profitable. Why? Because their own interest is also involved into this particular company they are managing. तो सेबी का कहना है कि जो लॉक इन पीरियड था that was important in order to ensure skin in the game because it shows executive shares a stake in the company's success as well as loss. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब
ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है इसमें ऐसा सडनली क्या हो गया कि जो ये लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट है इसको रिड्यूस करना पड़ रहा है. तो सेबी के अकॉर्डिंग एज मोस्ट ऑफ द कंपनीज दोज नाउ दीज डेज आर गोइंग टू रेज द पब्लिक फंड, दोज हु आर नाउ गोइंग टू issue the IPO, those who are not going to be public are now matured business. And but if they are matured business, the condition can be done away with. Besides, greenfield financing through IPO has become non-existent, and the market regulator has said that it is no longer useful to have the lock-in period for promoters. तो अब क्या है, बहुत ज़्यादा जो कंपनीज आईपीओ के लिए जाती हैं वो मैच्योर कंपनीज जाती हैं, इनिशियल कंपनीज नहीं जाती हैं, या हमें कहें जो वाइबल बिजनेस होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस कंपनीज होती हैं, वो ही केवल आईपीओ के लिए जा रही हैं. तो लॉक इन पीरियड की जो रिक्वायरमेंट है अब उसकी ज़रूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर इस पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट को या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट को डन अवे कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इंकरेज होंगी कि वो लिस्टेड हों, वो आईपीओ इशू करें, वो पब्लिक हों. और जो इस समय फंड रेजिंग की प्रॉब्लम चल रही है, फंड क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंस क्राइसिस चल रहा है पैंडेमिक की सिचुएशन में, उसमें कंपनीज को ईज आउट होगा. तो इट विल बी ईजी फॉर द कंपनी टू गो पब्लिक एंड रेज द फंड. Experts said that this particular move would help the companies driven by the private equity. तो अब कंपनीज को थोड़ा सा आसान होगा फंड रेज करने के लिए. प्रमोटर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डाइवर्सिफाई देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स. So these are the key points. Only 6-month lock-in period on pre-IPO capital. That is other than 20% promoters holding instead of 1 year. आईपीओ डिस्क्लोजर के भी जो नॉर्म्स हैं वो भी ईज आउट हो जाएंगे. आईपीओ फाइल करने के लिए, आईपीओ के लिए जाने के लिए भी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनको ईज आउट हो जाएगा. रिलैक्सेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द प्रमोटर्स, उसमें भी चेंज होगा. और सेबी इज ऑल्सो प्रपोजिंग टू एक्चुअली चेंज दिस कंसेप्ट ऑफ प्रमोटर विद द न्यू वर्ड, दैट इज पर्सन इन कंट्रोल और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स. तो प्रमोटर्स की डेफिनेशन या प्रमोटर्स के जो नॉमेनक्लेचर है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा अगर ये पर्टिकुलर प्रपोजल सेबी का एक्सेप्ट हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है. And this particular proposal is doing away with the requirement of disclosing details of top 5 listed or unlisted group firms in IPO prospect. So number of जो rules regulations हैं वो ease out होंगे, relax होंगे, and will definitely encourage the firms to go for IPO. And this is the two key news that is actually associated with the financial market. Equity mutual fund sees net inflow for the second month. On the other hand, banks bond investment exceeds the loan. So record liquidity infusion by the central bank in the banking system during financial year 21. Amid sluggish economic activity resulted in the bank investing more in the safe government papers then extending their loans. As we have discussed कि आरबीआई की लिक्विडिटी बढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कमर्शियल बैंक्स लोन देना नहीं चाहते हैं. और हुआ भी वही. अब जो बैंक्स का जो इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो ज़्यादा हुआ रादर देन लोन डिसबर्स करने में. तो बैंक्स ने लोन देना प्रेफर ना करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो पैसा है, उसको गवर्नमेंट के सेफ गवर्नमेंट पेपर्स के फॉर्म में रखना ज़्यादा appropriate समझा इस सिचुएशन में where there is an economy that is actually not very sure whether it is growing or downgrading. And this particular trend has not been seen nearly 2 decades since 2006, barring 2016 the year of demonetization. तो अगर उस particular year को छोड़ दिया जाए, that was the exemption, तो last 2 decades से ये trend देखने को नहीं मिला जब बैंक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा हो और लोन में कम हो. That means banks are preferring the safe investment avenues rather than going for high risk loan. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 6. 2 new product structure for title insurance likely. तो इस न्यूज़ को समझने के लिए पहले एक टर्म यहाँ समझना ज़रूरी, दैट इज टाइटल इंश्योरेंस. व्हाट इज एक्चुअली दिस टाइटल इंश्योरेंस? सो बेसिकली टाइटल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी लॉस कॉज्ड as a result of defect in the title of the property. Generally, title insurance protect the lenders and buyers from the financial loss due to the defects in a title of the property. The most common claims filed against a title are
back taxes, liens and conflicting wills. So it is a form of indemnity insurance. बेसिकली इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है जो प्रोटेक्टर्स या जो लेंडर्स होते हैं, होम बायर्स होते हैं, उनको किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉस से सेव करता है. ऐसा फाइनेंशियल लॉस जो कि बेसिकली डिफेक्ट्स इन टाइटल की वजह से अराइज होता है. बेसिकली जो अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, सो अनलाइक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच एक्चुअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी फ्यूचर इवेंट्स, बट टाइटल इंश्योरेंस जो होते हैं वो दैट इज जनरली गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्लेम फॉर द past occurrence, and the commonly claimed filed against a title are back taxes, liens, conflicting wills. So if we talk about a basic basic title insurance policy typically covers the ownership by another party, incorrect signature on documents as well as forgery and fraud, flawed records, restrictive covenants, encumbrance or judgment against the property such as outstanding lawsuit and lien. So basically इस तरह के जो frauds होते हैं उनसे cover करते हैं, उनसे secure करते हैं ये title insurance जो products होते हैं वो. As I told you, traditional जो insurance होते हैं उनके comparison में traditional insurance होते हैं वो future events के risk को cover करते हैं, जबकि title insurance की बात करें तो they actually covers the risk that is associated with the past occurrence. पास्ट occurrence जैसा कि मैंने बताया, ओनरशिप बाय अनदर पार्टी, इनकरेक्ट सिग्नेचर, फ्लॉड रिकॉर्ड, रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स, जजमेंट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इस तरह के जो रिस्क होते हैं उनसे टाइटल इंश्योरेंस कवर करते हैं या उसे टाइटल इंश्योरेंस इंश्योर करते हैं. अगर टाइप्स की बात करें तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइटल इंश्योरेंस, लेंडर्स टाइटल इंश्योरेंस एंड द ओनर्स टाइटल इंश्योरेंस. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि जो लेंडर टाइटल इंश्योरेंस होते हैं, जो ओनर्स टाइटल इंश्योरेंस होते हैं, इनकी क्या मीनिंग होती है. बट इन जनरल यू शुड नो दैट देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ टाइटल इंश्योरेंस, लेंडर्स टाइटल इंश्योरेंस एंड ओनर्स टाइटल इंश्योरेंस. अब आ जाते हैं न्यूज़ में. तो बेसिकली क्या न्यूज़ है आज की? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया था. दैट वर्किंग ग्रुप actually going to revisit the product structure of the title insurance. तो जितने भी title insurance product हैं उनके structure को revisit करेगा and will suggest the or will give the recommendation on the product structure. So product structure. So working group has suggested or has given their recommendations, and as per the working group there should be two new product structure apart from the comprehensive cover for all promoters, allottees and successor. तो वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि जितने भी जो टाइटल इंश्योरेंस हैं उनकी मार्केटेबिलिटी को बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जनरली इस केस में कम प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं या मार्केटेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम लोग जो टाइटल इंश्योरेंस पे जाते हैं. तो वर्किंग ग्रुप का ये कहना है कि सजेशन है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मार्केटेबिलिटी ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड कैटेगरी there is a need to expand this particular title insurance, and definitely the product has to be aligned with the requirement of the developers and customized to the need of the individual buyers. अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो जो बायर्स हैं उस पर्टिकुलर टाइटल इंश्योरेंस प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रोडक्ट के, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर सकती हैं. इट विल इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड कैटेगरी. और अगर ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, तो डेफिनेटली जो टाइटल इंश्योरेंस हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है. And as I told you, title insurance is a form of indemnity insurance that actually insure against financial loss from the defect in the title to the real property. तो basically जो real estate होते हैं उनसे associate करते हैं इस तरह के टाइटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो अगर इस तरह का अगर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के थ्रू कोई लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है इंश्योरर को, तो डेफिनेटली कंपनी विल एक्चुअली रीइंबर्स द इंश्योर्ड अमाउंट टू द ओनर और द लेंडर. जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा उस तरह का और जिस जो अमाउंट इंश्योर्ड होगा उसका. इन इंडिया, रियल स्टेट दैट इज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 फॉर द फर्स्ट टाइम गेव द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द कंसेप्ट ऑफ टाइटल इंश्योरेंस. रेरा आपने बहुत सुना होगा. रेरा जब आया था तो ऐसा कहा गया था कि जो फ्रॉड होते हैं रियल स्टेट के केस में, जहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं वो पब्लिक का मनी लेकर चले जाते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड द रियल स्टेट प्रॉपर्टी. तो
जब ये 2016 में रेरा एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था तो इसने फर्स्ट टाइम इंडिया में टाइटल इंश्योरेंस को रिकॉग्निशन दी थी एंड द रेगुलेटर हैज नाउ आस्क्ड फॉर द इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप। मई 31 तक की डेडलाइन दी है इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि पब्लिक इस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कमेंट्स दें जो वर्किंग ग्रुप की जो रिकमेंडेशन आई है इंश्योरेंस टाइटल को लेकर के। अभी अगर हम बात करें तो अभी क्या है, बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव कवर फॉर ऑल प्रमोटर्स अलॉटीज एंड सक्सेसर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट in the form of one product structure. As far as the two new product structures are concerned, basically working group ने suggest किया है कि there should be a legal expense policy for land title owners and developers or promoters. तो दोनों के लिए अलग अलग legal expense policy के फॉर्म में डिफरेंट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है वर्किंग कमेटी ने। दोस्त बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। Apart from this, a particular retail policy for allottees and individual customers' financial has also been suggested by this working groups who are actually going to purchase any unit under RERA projects. तो कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जिस पर पब्लिक कमेंट इनवाइट किया है IRDA ने। एंड इफ यू वांट टू रीड द रिकमेंडेशंस इन डिटेल सो यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स दैट एक्चुअली सजेस्टेड बाय वर्किंग ग्रुप कमेटी। जैसा कि मैंने बताया, टू प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की बात करिए, प्रमोटर लीगल एक्सपेंस पॉलिसी एंड अलॉटी रिटेल पॉलिसी। एंड दीज आर द इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड कितने टर्म्स के लिए होगा, क्या क्या कवर होगा, कवरेज फोकस क्या क्या होगा। अलॉटी रिटेल पॉलिसी के लिए कितना इंश्योरेंस होगा, सम कितना होगा, टर्म्स एज पर द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, कवरेज किस किस चीज़ पर होगा, सारी डिटेल्स दी हुई है। ऑल्दो अभी still it is recommendation, it is not going to implement it even before fetching the public comments or stakeholder comments. अब देख लेते हैं few other news clips. Mobile phone production down 50% on COVID hit. As I told you कि COVID-19 की जो second wave आई उसका impact हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। And because of the localized lockdown, a semiconductor shortage and a surge in COVID-19 cases at a factory have led to a slowdown into the mobile phone manufacturing. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ही डाउन हुई है। अगर हम देखें तो अप्रैल से मई के मंथ्स की अगर सेल के डेटा को देखें तो सेल में भी डाउनवर्ड टर्म देखने को मिल रहा है। तो भले ही नेशन वाइड लॉकडाउन ना हुआ बट लोकलाइज लॉकडाउन का और जो कोविड-19 के जिस तरह से केस इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। महाराष्ट्र पुट्स द ब्रेक ऑन वैक्स फॉर 18 to 44 ईयर्स ओल्ड। सो फिलहाल के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है दैट अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जो भी वैक्सीन के जो भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो भी जितने भी अमाउंट की डोजेस या इन्वेंट्री अवेलेबल है दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल यूज फॉर +45 ईयर्स इंडिविजुअल रादर देन 18 to 45 ईयर्स एज ग्रुप। और इसका एक सीधा साधा जो रीजन दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो यही दिया है कि अभी हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर 18 से 44 के एज ग्रुप को कवर कर पाएँ। सो हम अभी जो प्रायोरिटी है वो 45 से ऊपर की जेंडरी को या पॉपुलेशन को दे रहे हैं। वंस द वैक्सीन विल बी अवेलेबल वी मे ओपन दिस वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 18+ ईयर ओल्ड रेजिडेंट ऑल्सो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। केयन डिक्स इन हील्स PSB से प्रिपेयर फॉर लीगल बैटल। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने केयन के जो डिस्प्यूट की बात करी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट ने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको डायरेक्ट किया था, उनको वार्न किया था कि उनकी जो भी फॉरेन एसेट में एक्सपोजर है, फॉरेन करेंसी में जो फॉरेन मार्केट में जो भी उनका एक्सपोजर है या जो भी असेट्स हैं उनको फ़िलहाल के लिए वापस ले लें क्योंकि केयन मे गो फॉर मोर लीगल बैटल और हो सकता है PSBs के असेट को सीज करने की बात करें। इसी डायरेक्टिव्स के बाद में जो भी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनके फॉरेन लैंड में जिनका एक्सपोजर है, जिनके विदेशों में असेट्स हैं,
उन्होंने कहा है कि दे आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू टेक देयर असेट्स बैक, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर लीगल बैटल। और केयर ने भी वार्न किया है कि केयर सारे जितने भी लीगल मोड्स हैं वो सब यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस और रिकवर द $1.7 billion दैट इट वॉज अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल आफ्टर ओवरटर्निंग द retrospective tax demand that slapped by the Indian government। तो इंडियन गवर्नमेंट को इतना हर्जाना देना था $1.7 बिलियन का, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो नहीं देगी। एंड कोई भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इंटरनेशनल हो चाहे कैसा भी हो, इंडिया के टैक्स लगाने की सोवरेन राइट को नहीं छीन सकता, और उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को नहीं माना था इंडियन गवर्नमेंट ने। बट केयर ने वार्न किया दैट केयर इज रेडी फॉर all sort of legal options available for care energy। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मोदी स्लैशेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी फोरकास्ट टू 9.3%। तो मूडीज़ ने फिलहाल के लिए इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो अभी रिसेंटली हमने देखा फैश ने रिड्यूस किया, क्रिसिल ने रिड्यूस किया, और अब लगभग सारी जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, दे ऑल आर रिड्यूसिंग द जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम कहें कि किन्होंने नहीं रिड्यूस किया है, तो अगर गोल्डमैन शेस की बात कर सकते हैं, नोमुरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के जो प्रोजेक्शंस हैं उनके रिवीजन का वेट किया जा रहा है। फिलहाल के लिए क्रिसिल, फैच और मूडीज़ ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को रिड्यूस कर दिया है, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ negative indication for Indian economy। So rating agency Moody's on Tuesday cut the India's GDP forecast for the current fiscal year to 9.3%। पहले कितना प्रोजेक्शन था Moody's का? That was 13.7%। तो पहले Moody's ने सबसे अच्छा, हम बोले सबसे ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन दिया था इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। बोला था कि 13 से 14% तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। But because of increasing COVID-19 cases and the worst situation of COVID-19 in India, Moody's ने 9.3% तक डिक्रीज कर दिया। बट अगर हम देखें तो इट इज़ ऑन ऑप्टिमिस्टिक साइड। और अगर रेटिंग अपग्रेड की बात करें तो रेटिंग को भी अपग्रेड करने के लिए फिलहाल के लिए जो मूडीज़ है उसने मना कर दिया। उसने कहा कि दैट इट विल ऑब्जर्व द इंडियाज ग्रोथ एंड मे चेंज इट्स आउटलुक टू स्टेबल इफ ग्रोथ इज हायर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। SBI is nair to head the bad bank। तो बेसिकली जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL जो कि जून से ऑपरेट होने जा रही है, जिसका इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अनाउंसमेंट किया गया था, उसको एक शॉर्ट फॉर्म का भी नाम दिया गया है बैड बैंक। तो उस बैड बैंक में मिस्टर पद्म कुमार M नायर इज गोइंग टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड दैट पर्टिकुलर veteran belongs to State Bank of India, and he has a very vast experience of tackling the stress assets and the resolution of stress assets, and he worked into number of stress assets resolution groups. That is why he has been opted as a chief executive of newly formed bad bank, that is National Asset Reconstruction Company Limited। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक मैंडेट ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ये कैसे फॉर्म करें, क्या गवर्नमेंट का स्टेक है या बैंक्स का स्टेक है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, क्या एक्चुअली इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और कैसे इसको फॉर्म किया गया है। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये आंसर लिख करके बताएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.